each other on. There is no limit to what we can achieve as women. So let's celebrate womanhood together through this amazing opportunity today. Kindly mute your mics. To make a society empowered, the women of that society should also be empowered. There are a lot of women out there in our society who are working on daily basis, who are independent, who are raising their families on their own. But still, some women lack in one thing, and that is balancing, which is an important factor. We, the soon to be working women of this society, need to know the secret of balancing our lives and jobs together. And for that, we have engineer Nosheen Suhail here, who is not only pursuing her career as electromedical manager at POF Hospital Wakant, and is also a student of PhD Computer Engineering in UET Texla. So I would ask her to kindly give us some information about this topic and also tell us about her achievements and how she is balancing her life. Over to you, ma'am, Engineer Nosheen Suhail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Are you listening to me, please? Walaikum salam, ji ma'am. Okay. Let me check my mic and slide first, then we will start with it. Okay. So everyone's watching my slides? Ji ma'am. What should I start with? My sound clear? Does everyone listen to me, please? Sound is okay? Yes, ma'am, your sound is clear. Okay, thank you so much. Well, to start, it's a very important and sensitive topic on the International Women's Day. And the talk to which I'm going to talk on the topic is how a working woman can balance job and household. So, at start, I would start with some divine guidance. Allah Pak has said in Quran Pak that "Lain shakartum la yazidannakum." If you are grateful, I will give you more. So, किसी भी टॉक को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक तो है शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला का किसी भी मामले में शुक्र अदा करना. So Allah said that if you are grateful to me, then I will give you more. And secondly, अगर आपके पास already blessed हो, फिर तो आपको शुक्र अदा करना है ताकि अल्लाह आपको मजीद नवाजेगा. And if आपके पास कोई difficulty आती है, कोई आजमाइश आती है अल्लाह की तरफ से, then Allah has said in one of his ayat, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat, innallaha ma'as-sabirin. And who you believe, seek help through patience and prayer. So अगर आजमाइश आती है तो हमें पेशेंस और सब्र और नमाज से मदद मांगनी चाहिए. Indeed, Allah is with patient. अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है. So let's start our topic. I was first of all, I'm honored to be part of this prestigious session, which has been organized by Triad Society. And I do appreciate the step that has been taken by the society targeting on such important and sensitive topic. To start with, I'm neither a motivational speaker nor an advisor. मैं दोनों नहीं हूँ जी. और जब मुझे ये टॉपिक दिया गया तो I was just wondering कि how could I be suitable for this talk. यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे है और हर साल सेलिब्रेट भी किया जाता है. But how could I relate myself with today's topic? कि कैसे एक वर्किंग वुमेन जो है that balances her life in social life, जो उसकी working life है, as well as household.
is very important. So at once the very first thing that came to my mind was that मैं वो बंदी हूँ जो कि last 12 years से I've been doing the same thing. यानी कि जब से मैंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया और जब से मैंने अपना हाउस होल्ड करियर स्टार्ट किया, बोथ आई हैव बीन डूइंग द बैलेंसिंग इन बोथ ऑफ माय लाइव्स, बोथ ऑफ माय सर्कल. So that was the starting point, you can say a debut point of my life to get on with the responsibilities as well as household domestic chores. So topic was quite then relatable to me indeed. So उस टाइम मुझे फील हुआ कि yes, I can relate myself with the topic. So I would share the flow जो हमारी टॉक का होगा वो इस तरीके से होगा कि मेरी लास्ट 12 years में लाइफ में क्या क्या चीजें जो मैंने सीखी और क्या क्या चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस की एज अ वर्किंग वुमन एंड एज अ हाउस होल्ड वुमन के तौर पे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने एक्सपीरियंसेस के साथ. एंड देन वी विल सम अप विद सम की पॉइंट्स सो दैट हमें ज़रा कुछ सीखना है स्टॉक के. एट द एंड ऑफ दिस टॉक वी शुड नो कि हमने क्या लर्निंग की इस पॉइंट और एक्सपीरियंस के बाद. लेट्स स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में है, जो मैंने लिखी भी, दैट इज डिटर्मिनेशन, अज़म, जिसको उर्दू में हम अज़म कहते हैं. I started my bachelor's in electronics degree, and alhamdulillah I got scholarship from CIIT Ahmedabad, ComScience Ahmedabad से मैंने bachelor's किया. और उसी टाइम पे मुझे पता चला कि I was the only female in my class जिसने आगे continue करना. There was another fellow of mine, female fellow थी. She quit in the first semester. वो first semester में ही जो है electronics की डिग्री को quit कर गई. And I was almost left alone, but I continued. उस टाइम पे मैंने अज़म किया, no, I will remain determined and I would continue with my studies, even though I don't have any other female fellow with me. So 4 years of my study program, I studied with the male fellows, और alhamdulillah I remained determined. और हमने एक टीम वर्क के साथ काम किया, स्टडीज भी की, जॉइंट स्टडीज भी की, और काफी सारी प्रेजेंटेशंस भी अटेंड की. एंड एट द एंड आई एंडेड अप माय डिग्री विद इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल, अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो टाइम था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई डिटर्मिनेशन जो है वो सामने मेरे की उस टाइम पे. ऑल्दो आई वाज नॉट दैट, यू कैन से मैच्योर नहीं होता बंदा, 18-19 साल का यूनिवर्सिटी में आया होता है, बट मैंने क्विट नहीं किया और आई कंटिन्यूड विद दैट. So I learned determination. Next is adaptability. That is also very very important thing. एक woman, एक female, एक lady, एक girl, एक बच्ची ने ये चीज बहुत जरूरी देखनी होती है कि आपकी adaptability to its environment कैसी है. तो हुआ ये जनाब कि on the very day of my convocation I got my first job. मैं जिस दिन मुझे गोल्ड मेडल अवार्ड किया गया उसी दिन मुझे जॉब भी ऑफर हुई, और जॉब के लिए मुझे अपने होम टाउन को लीव भी करना था. सो मीनवाइल आई गॉट मैरिड भी वहां पे हुई, जो कि इन-लॉज दैट वर नॉट माय रिलेटिव्स, आउट ऑफ फैमिली लोग थे. वहां पे शादी हो गई और साथ ही में जॉब भी स्टार्ट हो गई. बोथ ऑफ थिंग्स वर अ चैलेंज फॉर मी बिकॉज आई वाज लाइक अ बिट पैम्पर्ड चाइल्ड फ्रॉम माय पेरेंट्स से हम ऐसे थे कि आपको हर चीज जो है वो तैयार मिलती थी. तो उस टाइम पे ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कोई टेंशन, ना कोई वरीज. सो जब मेरी शादी हुई एंड देन आई स्टार्टेड माय जॉब एज लेक्चरर इन वाई इंजीनियरिंग कॉलेज, इट वाज द टाइम टू टेस्ट माय एडेप्टेबिलिटी कि मेरी कैसी है. तो दैट वाज द टाइम. उस टाइम पे बैलेंसिंग तो समझ नहीं आती कि कैसे करनी है, बट I try to adapt myself with environment. मैंने कोशिश की कि जो चीज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मिल रही है, I started learning over that. यानी कि जब मैंने हाउस होल्ड स्टार्ट किया, वो एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. वहां पे मैंने काम को देखा कि किस तरीके से घर को संभाला जाता है, किस तरीके से फैमिली को लेके चला जाता है, और सपोर्ट भी मिली, मुझे चीजें सीखने को भी मिली. जो काम कभी लाइफ में किया नहीं था वो भी करना पड़ा. And in the parallel I had to go on for job also. आपको 8 to 4 की जॉब करनी है तो आपने फिर साथ साथ उसको भी कंटिन्यू करना है, घर को भी देखना है. सो वो जॉब जो थी वहां पे भी मुझे एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला उन लोगों की तरफ से, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से.
अच्छा एक environment I got it. And in the marital life, first thing यही थी कि जी मैंने ना नहीं करना. Yes, I will adapt myself to the new social environment. Cultural norms different थी. I belong to a different, you can say province भी different था. Cultural norms different थी. Setups, उठने बैठने के तरीके, बातचीत करने, everything was different when I came to work at. But by the grace of Allah and by the praise and by my adaptability quality, I try to adapt myself. नेक्स्ट मैंने ये देखा कि कोई भी चीज है आप डिटरमिन भी रहो कि नहीं आपने करना है और अडेप्टेबिलिटी भी अपने अंदर ले आते हैं. इवन देन जो बैलेंस लाइफ को करने के लिए चीज पहले स्टेप में आती है वो आपका हार्ड वर्क है, आपकी नेक नियति है कि आपने कितनी मेहनत से उस चीज को कंटिन्यू करना है. सो दोनों चीजें मेरे सामने आई. एक तो टू लर्न द हाउस होल्ड कोर्स. अब देखें घर के बहुत सारे काम होते हैं जो एक खातून ने करने होते हैं. इससे पहले हमारी मदर्स, हमारी यंगर एल्डर सिस्टर्स जो है वो देख रही होती हैं. बट देन एवरीथिंग कम्स ऑन योर शोल्डर. उस टाइम पे आपने हार्ड वर्क दिखानी होती है. हार्ड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन आप देखें स्टडीज में भी, आप सारी बच्चियां मौजूद हैं, सुन रही हैं, लिसनिंग टू मी. स्टडीज में भी आप जितना हार्ड वर्क पुट ऑन करते हैं उतना ही हमें फायदा होता है. सिमिलरली इसी तरह हाउस होल्ड स्किल्स सीखना चाहिए. मैं ये समझती हूँ कि हाउस होल्ड के जो काम होते हैं वो इंसान को ना छोटा करते हैं ना आपको डिग्रेड करते हैं, बल्कि ये एक ऐसे स्किल हैं जो कि एनी टाइम एट द स्टेज ऑफ लाइफ आपको आने चाहिए. लाइफ को एक फीमेल की जिंदगी जो हमारी होती है इसको बैलेंस ये करती है कि आपको हाउस होल्ड स्किल्स आने चाहिए. और वो आते कैसे हैं? वो जब आप उसमें खुलूस से नियत के साथ हार्ड वर्क पुट ऑन करते हैं. So I tried learning the household skills. अब सबको पता है कि हाउस होल्ड के कामों में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो सब थोड़ा थोड़ा करके सीखना पड़ता है. बट चूंकि मेरा केस वाज अ बिट डिफरेंट, दैट आई डिडंट नो एट द वर्क. बेसिक तो थोड़ा बहुत आता था बट बाकी कुछ नहीं आता था, वो भी साथ टाइम के सीखना पड़ा. एंड in the parallel meantime, official expertise and technical skills were also demanding at that time. हम यूनिवर्सिटी से एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से लेके आए होते हैं, हम बुक्स पढ़ के आए होते हैं. अब आप जब ऑफिशियल डेकोरम में चलते हैं तो क्या होता है जनाब कि एक न्यू प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं. बहुत मैनेजरियल टास्क भी मिलते हैं, टेक्निकल टास्क भी मिले जाते हैं. तो ये दोनों स्किल्स भी साथ साथ आपने सीखने होते हैं. एंड कैसे सीखते हैं? बाय योर डिटर्मिनेशन, अडेप्टेबिलिटी एंड हार्ड वर्क. अब देखें आप इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब आपने डिटर्मिनेशन तो दिखाई कि नहीं, पीछे नहीं हटना, कुछ भी हो जाए करेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे. अडेप्टेबल हुए आप अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, इन लॉज के साथ. एंड देन क्या चीज चाहिए आपको? नेक नीति के साथ हार्ड वर्क चाहिए. तो ये दो चीजें थी जो टू लर्न द हाउस होल्ड स्किल्स एंड ऑफिशियल एक्सपर्टीज, जो कि टेक्निकल स्किल्स साथ साथ टाइम के आती रहती हैं. देन what another thing I felt writing up this for writing up this talk was that planned activities. हमने अपनी एक्टिविटीज को प्लान करना होगा. There are lots of things that can distract our, you see, our energies, our activities and many other things. तो हमें क्या हमने अपनी एक्टिविटीज को प्लान करना है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन कैसे लिया जाए ना लाइफ को बैलेंस करने के लिए. सो उस टाइम पे सपोर्ट के साथ जो है आई डिसाइडेड दैट नाउ आई गॉट मैरिड, शादी हो चुकी है और जॉब भी कर रही हूँ. तो इस टाइम पे जब व्हेन यू फील अ बिट रिलैक्स कि जी अब आप थोड़ा अडेप्टिव भी हो चुकी हैं, हार्ड वर्किंग से आपने थोड़ा स्किल्स भी डेवलप कर ली हैं, देन आई स्टार्टेड माय पार्ट टाइम MS degree program. It was also important to improve my higher qualification, and it was the time when you see there's a decision planning involved. अब आपने जब फैमिली को साथ लेके चलना है और आप सारों की बात को भी सुनते हैं और उसको रिगार्ड करते हैं, तो देन अल्टीमेटली जो आपके सामने लोग हैं वो भी आपके डिसीजन को ओन करेंगे, उसको रिगार्ड करेंगे. सो दैट सेम हैपेंड टू बी. आई टुक एडमिशन इन MS degree, and then the time was the household course went on going. I learned how to manage my time, how to manage my office hours, and how to manage my studies. अब एक नई चीज एड अप होगी, मैंने स्टडीज भी करनी है. So
आई प्रेफर टू प्री प्लान थिंग्स लाइक, ये चीजें मैंने जब स्टडी आ गई तो फिर मैंने सोचा कि क्या चीज होनी चाहिए कि जिससे मेरा टाइम और मेरी एक्टिविटीज जो है वो मेरी कम से कम थकावट के साथ काम हो किया जाए। तो मैंने वीकली मेन्यू बनाना शुरू किया कि हाँ जी ये मेन्यू होना चाहिए, इसको हमें फॉलो। अगर 100% नहीं भी होता, जो ऑब्वियसली हर घर में नहीं होता, तो 50% तक तो आपका प्री प्लान चलता है। देन आई मैनेज टू प्री प्लान माई ग्रोसरी एंड स्पेसिफिकली जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी मुझ पे तो मैंने देखा कि जो चीज हमारे पेरेंट्स करते थे हमें पता भी नहीं चलता था, अब वो चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। दैट वाज द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिफरेंट, यू सी, बिल्स होते हैं आपको इन टाइम। अगर आपने एक बिल भी स्किप किया तो नेक्स्ट आपको ऑब्वियसली सरचार्ज पड़ेगा या उसके ऊपर आपको जुर्माना पड़ेगा। तो वो भी मुझे मंथली प्लानिंग करनी थी कि ये राइट टाइम पे राइट चीजों को पेमेंट जो है वो नहीं पेंडिंग रखनी, ग्रोसरी टाइम पे कर लें और मेन्यू को थोड़ा सा मैं कर ली, सो दैट आई गेट सम टाइम फॉर माय स्टडीज आल्सो। ऑफिस एनवायरनमेंट में देखें, प्लानिंग मैंने इस तरह करती थी टाइम के साथ साथ, दैट आई यूज अ व्हाइट बोर्ड। हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, बट आई यूज अ व्हाइट बोर्ड। उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं अपने प्रोजेक्ट्स और जो मुझे ऑनगोइंग टास्क असाइन होते थे, आई कीप ऑन राइटिंग दैट, मैं लिखती रहती थी। एंड देन वन प्रोजेक्ट और टास्क इज बीन फिनिश्ड, आई किल दैट, मैं उसको किल करके एंड देन अल्टीमेटली नेक्स्ट टास्क और नेक्स्ट प्रोजेक्ट उसके ऊपर आ जाता था। सो वो एक चीज नजर के सामने रहती है तो आप उस पर वर्कआउट करते रहते हैं, और अगर वो नजर से ओझल होती है तो वो स्किप भी हो सकती है। तो घर में, हाउस होल्ड में आई प्रेफर टू प्री प्लान थिंग्स जैसे मैंने बताया, और इसी तरह ऑफिस एनवायरनमेंट में मैं चीजों को राइट डाउन करके उनको एग्जीक्यूट करती। देन जब टाइम गुजरता गया तो पता चला कि जी आपको अपना टाइम और अपना वर्क जो है वो डेलीगेट भी करना होता है। आपने अपने शोल्डर्स पे अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली कि नहीं मैंने ही सीखा है तो मैंने ही करना है, ये भी एक ऐसा मसला क्रिएट करती है कि आपको अपने हाउस होल्ड में और फिर आप अपने जॉब में बैलेंस नहीं रख सकते। दैट इज बिकॉज अगर आपने वर्क को डेलीगेट नहीं किया तो क्या होगा कि अल्टीमेटली आपके ऑफिशियल डेकोरम और ऑफिशियल वर्क जो है वो घर में आना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होता है कि जी आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती है, आपका एक वो जो फैमिली टाइम होता है जो आपने देना होता है वो आप नहीं कर सकते, फिर एक क्रिएट अ सेंस ऑफ टेंशन भी क्रिएट हो जाती है। सो एज अ मैनेजर, एज अ गुड मैनेजर, वन हैज टू लर्न टू डेलीगेट टास्क टू अदर्स। और ये आप एकदम नहीं सीखते जा रहे हैं, स्टार्ट में आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते नहीं है, तो ये आप विद पैसेज ऑफ टाइम आप सीखते हैं कि किस तरीके से अगर आपके ऑफिशियल डेकोरम में आपको कोई वर्क फोक असाइन की गई है तो आप अपने सबऑर्डिनेट्स को टास्किंग करें, आप अपने कलीग्स को टास्किंग करें, इससे उनकी भी लर्निंग होगी और आप भी थोड़ा ऑफलोड होंगे। सो आई डिड दैट अल्हम्दुलिल्लाह, साथ साथ डेलीगेट करते गए वर्क को, और आप खुद भी ऑफलोड होती हैं और अगली भी एक्सपर्टीज को लर्न करते रहते हैं। हाउस होल्ड में मैंने डेलीगेट किया एग्जैक्टली। हाउस होल्ड में जब आप जॉब करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप टोटली पूरा घर खुद देख सकते, सो यू हैव टू डेलीगेट वर्क। एंगेज आपको मेड रखनी है, कोई और सर्वेंट रखना है, या कोई डेली पेमेंट बेसिस पे कोई आपको हायर करना है, तो उसको आपने घर का काम डेलीगेट करना होगा कि हाँ जी इतने से इतने टाइम इफ यू आर नॉट अवेलेबल, he or she would look after that you look after your kids, look after your in-laws, अगर आपकी फैमिली में कोई बुजुर्ग है तो उनको देखना है, एंड देन ऑल्सो आपके बाकी किचन वेयर्स को भी देखना पड़ता है। सो थोड़ा डेलीगेशन इज इम्पोर्टेंट, ये आपको ऑफलोड करेगी। अदरवाइज अपने शोल्डर्स पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बाय दिस टाइम 12 साल के बाद मैं समझती हूँ ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, ये दैट मेक्स योर लाइफ डिफिकल्ट। फायदा क्या होगा जी, जब आप डेलीगेट कर देते हैं टाइम तो आप यू बिकम एबल टू स्पेयर सम क्वालिटी गुड टाइम विद योर फैमिली। तो जो थोड़ा बहुत टाइम आपको मिलता है वो बैलेंस करता है आपकी फैमिली और आपके काम को। सो जरूर आप डेलीगेट करें अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और इस तरीके से ये चीज मैंने सीखी कि हार्ड वर्क के साथ साथ आपने काम को डेलीगेट भी करना है। और नॉलेज एक ऐसी चीज है, ये तो इनकलकेट करने से फायदा होती है। अगर आप ऑफिशियल डेकोरम में काम कर रहे हैं तो नॉलेज को इनकलकेट करें, और अगर आप हाउस होल्ड कोर्स में काम कर रहे हैं तो आप स्किल्स को डेवलप करें बाकियों में। ओके जी, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं समझती हूँ, वैसे इसको तो मैंने आखिर में ला रही हूँ, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑन कर लेते हैं, हार्ड वर्क भी कर लेते हैं, अडेप्टेबल भी हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये एक रात की गेम नहीं है बल्कि इट टेक्स टाइम हार्ड वर्क। तो आप देन यू मस्ट स्पेयर सम टाइम फॉर योरसेल्फ।
तो फिजिकल एक्टिविटी में अपना आप एंगेज करना चाहिए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये हम नॉर्मली एज वुमेन क्या करते हैं, हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, अपनी मेंटल रिलैक्सेशन की जो हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, एंड अबव ऑल हम कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे थे। सो मेरे ख्याल से इसको इग्नोर नहीं करना, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज चल रही हैं, बट यू एज अ वुमन, एज अ गर्ल, एज अ लेडी, एज अ ह्यूमन, इन फैक्ट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो गिव टाइम टू योरसेल्फ। मैंने क्या किया जी, जो भी अवेलेबल एक्टिविटी, देखें जरूरी नहीं है कि फलां कर लिया तो मेरे पास होनी, जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, यू ट्राई टू स्पेंड टाइम फॉर योरसेल्फ और उस अवेलेबल एक्टिविटी को आप ज्वाइन करें। जैसे आई यूज्ड टू बी अ गुड एथलीट इन माय स्कूल लाइफ, मैं हर तरह के स्पोर्ट्स खेला करती थी, बट देन आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर किड्स जो है दैट बिकेम लिटिल डिफिकल्ट। बट जैसे ही मैंने ये 2-3 चीजें पिछली करना शुरू की तो मुझे लगा कि यस आई हैव सम टाइम, yes I can do something. तो I started playing बैडमिंटन। घर में मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे आई गेट टू नो दैट देयर इज अ टूर्नामेंट गोइंग ऑन ऑफ फॉर वुमेन, तो वो मैंने उसको उस टूर्नामेंट को ज्वाइन किया। इसलिए मैचेस हमारे हुए, और मैचेस भी यू कैन सी बच्चियों के साथ जो स्कूल कॉलेज की उस टाइम की एक्टिव बच्ची होती हैं वो मेरे मध्य मुकाबल थी। मैंने क्वार्टर फाइनल विन किया, सेमीफाइनल विन किया, एंड अल्टीमेटली आई वॉन दी फाइनल मैच, और मैंने पीओएफ के लिए वुमेन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी विन किया। तो वो मुझे, मेरे लिए दैट वाज अ बूस्ट अप टाइम कि मैंने फिजिकल एक्टिविटी भी की और साथ ही मुझे इनकरेजमेंट। तो मीनवाइल टू कीप माई सेल्फ फिजिकली फिट एंड एक्टिव, आप बस एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप डेली वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग को अपना सकते हैं। वी शुड स्पेयर एटलीस्ट हाफ एन आवर फॉर आवरसेल्फ, फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर माइंड। तो आप मेंटल स्ट्रेस से भी रिलीज होते हैं और फिजिकली भी एक्टिव होते हैं। तो टॉक जरा लंबी होगी, बट ये है कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए अपने लिए टाइम निकालें, यू विल फील रिलैक्स, विल फील कि आपके अंदर एक नई एनर्जी और फ्रेशनेस आ रही है। उसके बाद मैंने ये अपनी लास्ट 12 years ऑफ माय एक्सपीरियंस जो था बैलेंसिंग, एक्चुअली मैं बैलेंस ही करने की ट्राई करती रही, कोशिश करती रही। उसमें आपने प्रायोरिटी सेट करनी है। Many times at time हम क्या करते हैं that we don't set priority, जो टास्किंग हमें मिल रही होती है हम उसके मुताबिक चल रहे हैं, मतलब एक घन चक्की है बस उसमें पिसते जा रहे हैं या काम करते जा रहे हैं। नो, हमने देखना है कि व्हाट इज आवर प्रायोरिटी ऑफ वर्क, इंपॉर्टेंस किस बात की। इस टाइम पे अगर 10 टास्क पेंडिंग है तो उसमें से फर्स्ट 5 जो इंपॉर्टेंट है उसको आप प्रायोरिटाइज करके एग्जीक्यूट करें, रेस्ट को आप पेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमें करना पड़ता है अपनी ऑफिशियल लाइफ में भी, जॉब में भी प्रायोरिटीज को सेट करें, और इसी तरह अपने घर में भी प्रायोरिटीज को सेट करें। मेरे लिए एक और प्रायोरिटी जो थी, जो ऑलवेज वेरी बिफोर मैरिज भी रही और अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज आई नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन माय रेस्ट आवर। अगर मैंने सोना है तो स्लीप टाइम मुझे पता है कि मैंने 7 से 8 घंटे अगर सोना है तो इट मीन्स कि मैंने अपना टाइम जो है वो उसके लिए निकालना है सोने के लिए। तो इफ आई कीप ऑन मैनेजिंग माय टाइम कि मेरी एक्टिविटीज सारी पूरे दिन की प्लान हो जाती हैं मैक्सिमम प्रायोरिटी के हिसाब से, पूरी की पूरी नहीं भी हो पाती, बट अगर मैक्सिमम प्रायोरिटी के हिसाब से मेरी अकम्प्लिशमेंट हो जाती है, देन आई गो टू स्लीप। आई टेक माय, मतलब मैं बेड पे चली जाती हूँ, आई गो टू स्लीप। रेस्ट को मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। एंड इवन आई एम फेमस इन माय फैमिली दैट नौशीन जो है उसके सोने का टाइम हो गया, बस काम खत्म हो गया। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो हेल्थ के लिए भी अच्छे, आपको पता है नींद पूरी होगी तो फिर अगले दिन का आगाज आप कर सकेंगे। और नेक्स्ट इज प्रायोरिटी सेटिंग में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आई प्रेफर्ड माय फैमिली टाइम। अब आप देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं, तो आपने डिसाइड कर लिया कि अब आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, फैमिली टाइम या वो सारी एक्टिविटीज हैं जिनमें आप गैदरिंग्स में जा सकते हैं। सो गैदरिंग्स आर इम्पोर्टेंट नो डाउट, बट फैमिली टाइम को आप सफर नहीं कर सकते। फैमिली टाइम को दें, उनको प्रेफरेंस दें, प्रायोरिटीज को अपने सेट करें। सो जी, टू सम अप हम ये कह सकते हैं कि जो मैंने अपनी लास्ट 12 years ऑफ माय प्रोफेशनल लाइफ, माय हाउस होल्ड लाइफ और एकेडमिया, तीनों को मिला के मैंने सीखा वो ये था कि जी हमें बैलेंस करने के लिए वी नीड डिटर्मिनेशन, हमें अज़म चाहिए। और आप जब डिटर्मिनेशन कर लेते हैं किसी बात का तो अल्लाह ताला खुद हेल्प आउट करता है, आपको मदद करता है। Adaptability, of course, things are not going according to your
विन। सो आपको अडेप्टेबल होना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी में अडेप्टेबिलिटी लेके। हार्डवर्क, जैसे मैंने बताया, हार्डवर्क तो करना ही पड़ता है चीजों को, स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपने स्टार्ट में हार्डवर्क करना है। अब आपने ये जब तीनों चीजें कर ली तो आप देखें, घर में हो या ऑफिस हो, पैरेलल प्रोसेसिंग आपने रखनी है कि किन चीजों को आपने टाइम बचा के, सेविंग करके, हाउस होल्ड कोर्स को और पैरेलल प्रोसेसिंग करके आपने टाइम को बचत कर ली। जब आप ये कर चुकेंगे तो फिर आप एक और स्टेप पे जाएंगे, डेलीगेशन ऑफ वर्क। जैसे मैंने आपको बताया, ऑफिस है तो सबॉर्डिनेट्स के साथ, कलीग्स हैं तो उनको काम डेलीगेट करें, उनको टास्किंग दें और फिर उनसे फीडबैक दें। और घर है तो आपके साथ जो भी हेल्पिंग हैंड है उनको भी डेलीगेट करें, सारा बोझ अपने कंधों पे नहीं लेना। लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने समझी और सीखी अपनी लाइफ में वो ये है कि वी आर नॉर्मली, हम गर्ल्स और लेडीज जो होती हैं, अगर क्वाइट एम्बिशियस, मैं भी आप लोगों की तरह बड़ी एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस काइंड ऑफ पर्सन थी कि मैंने जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जाना है और मैंने अब्रॉड स्कॉलरशिप्स लेने हैं, फलाना ढिमकाना, बिकॉज मैं टॉपर हूँ। तो नो, आई हैव टू डिसाइड। उस टाइम पे मुझे डिसाइड करना था कि नहीं, व्हाट इज द प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप भी इस तरह करें, एट टाइम्स आपको परफेक्शनलिज्म के पीछे नहीं भागना। जो चीज उस टाइम पे अवेलेबल है, अडेप्टेबल है, आपके लिए इजीली हो रही है, वो आपको। जैसे मैंने गवर्नमेंट सेक्टर को चूज किया, मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था कि उसकी टाइमिंग सूटेड माय फैमिली टाइम। मेरा फैमिली टाइम सफर नहीं होता, मेरा ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम है, तो हर चीज मोनेटाइजेशन की तरफ नहीं लेके जानी। मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑल्दो आर इम्पोर्टेंट, नो डाउट, बट आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना होता है। तो अगर आपके परफेक्शनिज्म है तो परफेक्शनिज्म के नीचे पीछे नहीं भागना। Then I said कि exercise and mediate, spare time for yourself, अपने लिए जरूर टाइम निकालें। और अपना डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज और टाइम वेस्ट जिसको आप समझ सकते हैं, वो अगर आपकी हो रही है, जिससे आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपका काम हर्ज होता है, तो जस्ट लीव इट, आप उसे छोड़ दें। एंड पुट एफर्ट्स, आपने अपनी सारी एफर्ट्स को अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज रखनी होती है। मैंने पहले बताया कि प्रायोरिटी सेट करना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बगैर प्रायोरिटी के सारे टास्किंग अपने ऊपर लेंगे तो होगा ये एट द एंड ऑफ द जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो आपसे रह जाए। नेक्स्ट जनाब, अब मैं इस सम अप तो मैंने कर लिया सारा अपनी लाइफ को। जस्ट इन अ व्हाइल मैं आपको थोड़ी सी अपनी अचीवमेंट्स बताती हूँ कि अगर ये चीजें साथ साथ होती गई, गाइडलाइंस भी मुझे मिलती गई, तो मैंने क्या कुछ अचीव किया। प्रोफेशनल करियर अचीवमेंट्स अगर मैं बताऊं तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैंने लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन किया, आई स्टडी देयर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट अचीवमेंट जो मुझे हासिल हुई, दैट वाज द आई एस्टैब्लिश्ड FPGA Xilinx लैब ओवर देयर, कि अभी भी वहाँ मौजूद है जनाब उनके इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में। और मुझे फख्र है कि ये लैब जो है वो बहुत अच्छे से वहाँ चल रही है। इसकी जो लैब स्टार्टिंग थी हार्डवेयर के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ, वो मैंने ही करवाई थी, और इससे पहले इनके पास FPGA लैब नहीं थी। नेक्स्ट, अब मेरे पास जब POF में मैंने ज्वाइन किया, आफ्टर लैप्स ऑफ 1 ईयर POF में वैकेंसीज आई, अप्लाइड देयर, वहाँ मैं सिलेक्ट हो गई फ्रॉम माय प्रोविंस। तो वहाँ मैंने 2010 में मैंने POF ज्वाइन किया, and then I got my first commendation certificate from the then chairman PF board. It was a pattern making machine थी, उसके ऊपर हमें छोटा सा प्रोजेक्ट था, not that big, but टीम वर्क किया हमने, टीम वर्क में सीखा मैंने और फर्स्ट कमेंडेशन हासिल किया। सेकंड कमेंडेशन जो है वो मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम, 2013 की बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उस टाइम पे ये CCTV कैमरास वाकई में नहीं थे, तो हमने यहाँ प्लानिंग की कि कैसे फाइबर ऑप्टिक पे इसको कन्वर्ट किया जाए, और OTDRs हमने लगाए, PTZ कैमरास की सेटिंग्स की, अलाइनमेंट्स की टेक्निकल स्क्रूटनी होती है कि आपने किस तरीके से कौन सी स्पेसिफिकेशन के साथ लेके चल रहा है सिस्टम को, और फिर कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किया गया। आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, उसमें कमेंडेशन मिला मुझे। देन थर्ड कमेंडेशन जो है, चेयरमैन साथ साथ चेंज होते रहते हैं, फॉर आफ्टर एवरी 3 to 4 years आप हमारे चेयरमैन आते हैं। एंड देन 2016 में हमने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ POF, पहले कन्वेंशनल डिजिटल एक्सचेंजेस लगा करती थी, हमने उसको IP बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन एक्सचेंज में कन्वर्ट किया, इंस्टॉलेशन कराई, कमीशनिंग हवेलियां संजवाल गदवाल में वहाँ के साथ उसकी कम्युनिकेशन हमने IP पे करवाई, दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। और PTCL और NTC से हमने आई थिंक मिलियंस ऑफ रुपीस पर मंथ में जो हम बिल पे करते थे वो हमने गिव अप करवा दिए और ये सेविंग अचीव की।
देन फोर्थ कमेंडेशन जो है वो मैंने 2018 में दिया, एट दैट वाज द टाइम कि मेरी ट्रांसफर हो चुकी थी, दैट वाज माय फोर्थ पोस्टिंग आल्सो, एक बिल्कुल नई जगह जहाँ पे सीएनसी मशीन्स का नाम सुना होगा आपने, तो वहां पे मैंने उस ओल्ड कन्वेंशनल मशीन थी जो कि तकरीबन 20 साल से बंद पड़ी थी, उसको हमने लिया, उसको ओवरहॉल किया, उसकी रिफर्बिशमेंट की, कंट्रोल सिस्टम अपग्रेड किया, और फिर हमने वो मशीन चलाई, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी मशीन गन फैक्ट्री में चल रही है, प्रोडक्शन दे रही है, और उस पर भी हमें कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिला। ये कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स जो हैं ये कैश प्राइजेस के साथ साथ होते थे, बट ये मेरे करियर में जितनी मेरी पोस्टिंग्स हैं उतनी मेरी कमेंडेशंस हैं। फिफ्थ एंड सिक्स्थ कमेंडेशन इकट्ठा तकरीबन 2019 का जो ईयर था उसमें मुझे मिला, और वो हमने 2 मशीनों को रिवाइवल किया, वो भी इसी तरीके से उनके ऊपर पीएलसी कंट्रोल सिस्टम जो अपग्रेडेड पीएलसी सीमेंस का स्टेप 7 पीएलसी था उसको हमने कॉन्फ़िगर किया, प्रोग्राम किया, मशीन को ऑटोमेट किया, और ये वेपन फैक्ट्री की मशीन थी, ये विद जीरो रिजेक्शन, ये आपकी G3A3 गन के स्प्रिंग्स बनाती है, उसको हमने ऑटोमेट किया। ये मशीन काफी अरसे से डंप पड़ी हुई थी, और पीएम वाज थिंकिंग टू सर्वे इट ऑफ, इसको अनसर्विसेबल डिक्लेयर कर दी थी, इसको हमने चलाया अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी चल रही है और वर्किंग में आ रही है। एमए फैक्ट्री की भी एक मशीन थी, वो भी हमने ओवरऑल की। सो ये तो मेरी ऑफिस में हमने कुछ वर्किंग की। यहाँ पे प्रेजेंटली जिधर मैं सर्व कर रही हूँ, जैसा कि आपको मुख्तावर ने भी बताया, आई एम सर्विंग एज बायोमेडिकल इंजीनियर इन पीएफ हॉस्पिटल। यहाँ पे हमने आते मेरे 2 मंथ्स हो चुके हैं यहाँ पे ट्रांसफर हुए हुए। कंप्यूटराइज कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मैंने यहाँ पे अप्रूवल्स कराई, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, उसके बाद हमने यहाँ इक्विपमेंट लगाया, और इनके पैक सिस्टम जो इंटरनल पूरी लैन हॉस्पिटल में चल रही है, उन सारों को हमने अपने इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट किया रिमोटली, और एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, राउंड द क्लॉक चलता है, हमारी शिफ्ट्स होती हैं जी, नाइट, इवनिंग एंड मॉर्निंग। आजकल मैं काम कर रही हूँ न्यू ओपीडी कॉम्प्लेक्स, आपने देखा होगा, उधर हमारा बायोमेडिकल इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन कमीशनिंग हुई, और एक हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर फॉर टर्शियरी केयर, ये चल रहा है प्रोजेक्ट, इस पे हम काम करें। देखिए ये कब कंप्लीट होता है होपफुली, और ये भी वो समझ लें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस रीजन में यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर नहीं था, जो है वो भी बहुत ही खस्ता हाल में। तो ये प्रोजेक्ट है। एकेडमिक में आए तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने 2008 में मुझे गोल्ड मेडल अवार्ड किया था, आई गॉट इट, इंस्टीट्यूट मैंने टॉप किया था, उस टाइम पे गोल्ड मेडल मिला। इसके अलावा मैंने एमएस की डिग्री ली, उस टाइम पे आई हैड 3 किड्स, पीएचडी स्टार्ट की मैंने, पीएचडी भी देखिए टाइमली डिसीजन होता है, वक्त के साथ साथ आप चीजों को जब आप स्पेयर आउट बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, देन आप डिसीजंस लेते हैं कि हाँ अपने अपने हायर क्वालिफिकेशन भी साथ साथ इंप्रूव कर सकते हैं, यू गेट द टाइम एंड यू गेट द सपोर्ट। पीएचडी रिसर्च पब्लिकेशन जैसे आप देख रहे हैं, one is my international journal publication on cybernetics and system, and second is my international conference publication so far on my PhD. ये on a lighter note you can see, ये भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। 3 मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2 ट्विंस हैं जी, मॉज एंड मॉबस, और ये माशाल्लाह 9 इयर्स के हो चुके हैं ये जी, और ये छोटू है मोहित खान, ये भी अब 7 इयर्स का हो चुका है। और ये वो जी टूर्नामेंट था फीमेल का जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप, तमाम वाक कैंट कॉलेजेस की बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया था, और बस डिटर्मिनेशन थी, माँ बाप की दुआएं थी, और अपना एक पैशन था मेरा, तो मैंने जो है ये खेला और जीत भी लिया। नेक्स्ट जी, लाइटर नोट पे मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा बोल गई हूँ। लाइटर नोट, एक छोटा सा लास्ट स्लाइड टू शेयर विद यू गाइस इज दैट कि गोल्ड मेडल है, सर्टिफिकेट्स हैं, कमेंडेशंस हैं, ये तो ऐसी चीजें जो मैं शो कर सकती हूँ आप लोगों को, लेकिन पर्सनल लाइफ में मैं कैसी हूँ घर में इन लॉज के साथ, वो कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है। आपको पता है ये ऐसा काम होता है जो आपको कोई इसकी रिटर्न कुछ भी नहीं मिल सकता। सो मैंने रात में कहा अपनी फैमिली से कि भाई से एनीथिंग अबाउट मी फ्रैंकली, जो आपके दिल में आता है मेरे लिए बोल दें। मैंने कल बच्चियों से शेयर करना है क्या करते हैं मेरे इन लॉज, मेरे मतलब क्या सोचते हैं। सो दिस इज अ शॉर्ट क्लिप, दिस इज लेफ्ट पे दुराना सईद मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, राइट पे भी मेरी सिस्टर, 2 सिस्टर इन लॉज हैं जी मेरी, दोनों बड़ी हैं एज में। तो इनको मैंने कहा कि आप कुछ तो बोले जी, तो आपको भी सुनवाते हैं। आर यू लिसनिंग जी, आपको आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके, मेरा ख्याल से मैं बस सम अप करने लगी हूँ, और बैलेंस लाइफ के मतलब मैंने बहुत बोली, और मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही बोली है, बट मैं आपको
छोटा सा एक क्लिप सुना देती हूँ। इन्होंने क्या जी मेरी देखते हैं रात में मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे मतलब क्या कहा। पूरी फैमिली we are very much grateful to her because she is looking after my physically disabled mother just like her own mother. मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसकी इस सिंसियरिटी का और अफेक्शन का शुक्रिया अदा कर सकूं या उनको बयान कर सकूं। वो ना सिर्फ घर पे एक बेहतरीन बहू और बेटी की तरह काम करती है बल्कि शी इज वर्किंग अ ट्रेमेंडस जॉब इन एट हर वर्कप्लेस। थैंक यू। ये जी बड़ी सिस्टर इन लॉ थी और ये मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है। देखें ये क्या कहती हैं। नौशीन के लिए मैं कुछ लफ्जों में नौशीन को बयान करना काफी मुश्किल है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। नौशीन स्टूडेंट है तो बेस्ट, टीचर है तो awesome, माँ है तो बहुत अजीम, बीवी है तो बेहतरीन दोस्त, बहू है तो बेटी जैसी और भाभी है तो मिसाली, औरत है लेकिन मर्दों की शाना बशाना मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रही है। बेस्ट ऑफ लक, bundle of best wishes, my dear Nasheen. We love you. We're proud of you. थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस मुझे सुनने के लिए और अगर किसी ने कोई है तो कर सकते। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for your time. यू आर वेलकम जी। Thank you so much, ma'am, for giving us such good piece of information and motivation. And I'm truly feeling very motivated right now. And we're surely looking forward to have you again. Thank you so much. थैंक यू जी। वेलकम। Okay, so moving forward to the next topic. As we know, a lot of women in our society are independent and working out there, raising their families, but still, there are a majority of women. Sorry. But still, there are a majority of women in our society who do not have enough resources and information about their rights. A huge amount of women on daily basis face domestic violence and are unable to do anything because they don't have enough information about their rights. We being the part of the society should know our rights and should have necessary info. And to address that topic, we have Ma'am Sadia, who is clinical psychologist and is also former internee therapist in Institute of Psychiatry WHO in collaboration with Benazir Hospital, Rawalpindi. So I will ask her to kindly give us some details about domestic violence and its effect and also tell us about her achievement. So over to you, Ma'am Sadia Malik. Assalamu alaikum. Are you listening to me? Yes, ma'am. Okay. I'm very much honored to be the part of this, this prestigious session, I must say, where the people who are connected to the future of this nation, they are listening to me and I'm interacting with them. And I'm much more thankful to your faculty who gave me this opportunity to talk about this sensitive issue. टॉपिक इतना वास्ट है कि इस पे बोलते वक्त या इस पे बोलने के लिए हमें इतना ज्यादा वक्त चाहिए कि बहुत थोड़े टाइम में इसको रिस्ट्रिक्ट करके बोलना मुझे लगता है कि उसको बहुत ब्रीफली उस पे बात करने के लिए भी आपके पास वक्त बहुत थोड़ा होता है. But I will try my best to wind up the things and to clear the points so the audience who is listening to me and who is right now who is in touch with me,
they can understand what actually I just want to say and I just want to convey the message. So 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन बहुत जगहों पे मनाया गया, बहुत सारे फोरम्स पे women rights की बात की गई, but the very sensitive topic that is related to the domestic violence and its psychological effects upon the females, हम उसको most of the time टच नहीं करते या उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि उस पर बात करते वक्त हम खुद एक ऐसी इमोशनल स्टेट पे होते हैं that sometimes we are unable to deliver the things. मतलब हम उस चीज को उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते. So before touching the topic, I just want to briefly describe what actually the domestic violence is. Domestic violence basically एक ऐसा violence की form है जिसमें किसी भी, especially the domestic violence against the females, it is actually that kind of the violence in which their rights are being violated just because of the power saving of an authority. एक ऐसी अथॉरिटी जो अपने माइंड में एक पावर सेविंग का इमेज उन्होंने बनाया है, उसको सेव करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो ख़वातीन की बहुत सारे राइट्स को वायलेट कर रहे हैं. बाज़ औक़ात वो वायलेशन फिजिकल राइट्स की फॉर्म में हो सकती है, समटाइम्स वो वायलेशन इमोशनल राइट्स की फॉर्म में हो सकती है, समटाइम वो वायलेशन उनके जो इकोनॉमिकल राइट्स हैं उसको वायलेट किया जा रहा होता है. तो एक एक करके मैं इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करूंगी. एट द वेरी इनिशियली अगर आप देखें तो इस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज द 6th मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज अनसेफ फॉर द फीमेल्स. पाकिस्तान इस टाइम 6ठे नंबर पे इसको पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया है. वो ख़वातीन की जो डोमेस्टिक वायलेशन है उसमें पाकिस्तान इस टाइम 6ठे नंबर पे है और हमारे लिए ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है. यहाँ पे हमारे पास आए रोज डोमेस्टिक वायलेंस में फिजिकल अब्यूज के केसेस हमारे पास बेशुमार केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं. इमोशनल वायलेंस के केसेस को तो अभी तक हम टच ही नहीं कर पाते. उसको तो हम किसी तरह से उसको तो मैयर करना इसलिए इम्पॉसिबल है हमारे लिए कि उसको हम कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं कर पाते. People are not aware, even the females, they are not aware about their emotional rights or about the psychological needs that they possess and how they are being violated. So initially, in form of such things, ये दो हमारे पास जो major categories हैं जिसको आप physical violence कहते हैं, domestic violence की जो categories हैं उसमें, या आप उसमें emotional violence की बात करते हैं. तो physical violence में हमारे पास most of the time females जो आती हैं हमारे पास different cases के साथ, चाहे वो लॉ की जो डिपार्टमेंट है उसमें आके रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस, या वो केसेस हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास आ रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसमें देखें तो उसमें जो एक मेंटालिटी है, द मेल मेंटालिटी एंड द डोमिनेट मेल मेंटालिटी, जो उस टाइम आप वहाँ पे देखेंगे, चाहे वो उनके वालिद हैं या उनके भाई हैं या वो अपने इलाज में अपने जो इंटीमेट पार्टनर है उसके थ्रू उस वायलेशन को वो फेस कर रही हैं, वो इस कदर सवेयर होता है कि सम टाइम इट इज अनएबल टू अंडरस्टैंड कि हम उसको समझ नहीं पा रहे होते कि हम उसको किस तरह से मैयर करें और हम किस तरह से उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए कि एक्चुअली वो किस किस्म के ट्रॉमा से गुजर रही हैं. फिजिकल वायलेंस में उनके साथ ऐसी फिजिकल ब्रूटैलिटी की जा रही है कि जिसको बयान करना बात बहुत मुश्किल हो जाता है. कभी कभी उनके अज़ा काट के फेंक दिए जाते हैं. अपनी डोमिनेंस को या अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए कोई भी ऐसा शख्स जो उनका इंटीमेट पार्टनर भी हो सकता है, उनके इलाज में से कोई हो सकता है, उनकी फैमिली मेंबर्स में से कोई डोमिनेटिंग फिगर हो सकता है जो सिर्फ अपनी पावर को सेव करने के लिए उनको इस चीज का निशाना बना सकता है, तो वो उनका एक फिजिकल वायलेशन है. अब उस फिजिकल वायलेशन जो उनकी की जा रही है या उनको मारपीट का निशाना बनाया जा रहा है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो साइकोलॉजिकल फॉर्म में है या इमोशनल फॉर्म में है, वो इतनी सवेयर है कि उसकी जो मेजरमेंट है या उसको हम अगर उसको हम क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते. हम उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं उसको हम स्पेसिफाई ही नहीं कर सकते. इवन बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट व्हाइल वर्किंग इन दिस फील्ड, आई हैव सीन सो मेनी केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड वहां पे बाज़ औक़ात ख़वातीन इतनी स्केयर्ड होती हैं, इतनी उनके अंदर इतना खौफ होता है, इतना हरास किया जाता है उनको कि वो अपने राइट्स के लिए बोल ही नहीं सकती. दे आर अनएबल टू स्पीक फॉर देयर ओन राइट्स और वहां पे उनके लिए जो ट्रॉमा होता है उसको बेयर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. Second one is the emotional violation of the rights, the emotional violation of the emotional well-being or emotional health of an individual. तो पाकिस्तान में नहीं, आप
इसके जो सर्वेज हैं अगर आप देखें स्टेटिस्टिकली अक्रॉस द वर्ल्ड, फीमेल जो है उनको एक कमजोर और एक वीक क्रिएशन के तौर पे लिया जाता है, और उनकी इसी जो उनका एक एस्पेक्ट है उनकी पर्सनालिटी का कि वो फिजिकली थोड़ा या बाकी कुछ एस्पेक्ट्स में वो मेल से इतना रिसेसिव है या डोमिनेटिंग नहीं है, उनको अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसके लिए उनको यूज किया जाता है। अब इमोशनल वायलेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो इंटीमेट पार्टनर्स हैं, जो फीमेल्स के साथ जिनके टर्म्स हैं, उनके हस्बैंड्स हैं, उनके जो इंटीमेट पार्टनर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट रिजेक्शन का होता है। फीमेल्स को वो अप्रूवल नहीं दिया जाता, चाहे वो अप्रूवल उनकी पर्सनैलिटी अप्रूवल की फॉर्म में है, चाहे वो अप्रूवल उनके अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिहाज से है, चाहे उस अप्रूवल को आप उनके करियर से रिलेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे उनको वो अप्रूवल नहीं दिया जाता, उनको अंडररेट किया जाता है, उनको मुसलसल एक ऐसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाला जाता है थ्रू द इमोशनल मैनिपुलेशन कि जिसके थ्रू वो मुसलसल एक एहसास कमतरी का शिकार रहती है। अब इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का इन लॉन्ग रन जो खवातीन पे असर होता है वो बहुत सारे, आप ऐसे कह लें कि दे आर द डीप साइकोलॉजिकल स्कार्स, आर दे आर द अनसीन स्कार्स। और उन स्कार्स को समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको मेजर करना, उनका ट्रीटमेंट करना या उनको उस चीज से बाहर निकालना इटसेल्फ एक बहुत तकलीफदेह प्रोसीजर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि कपल केसेस जब हमारे पास आते हैं तो खवातीन वहां पे when they speak up, जब वो अपने बारे में बात करती हैं, तो sometimes they speak about their own privacy, that sometimes they are not provided that kind of privacy जिसमें या वो फ्रीडम जो उनका राइट होता है, जिसको आप इमोशनल राइट कहते हैं या इमोशनल फ्रीडम है, दैट इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड टू देम। उनको इमोशनली वायलेट किया जा रहा होता है, और उस वायलेशन की सबसे बड़ी जो फॉर्म है वो ये है कि उनको सोशली रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आपने अपने जब शादी हो गई, आप इलाज में चले गए, तो नाउ यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू द बाउंड्रीज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेमिसेस। आप उससे बाहर नहीं किसी के साथ इंटरेक्ट कर सकते। इससे पहले जिनके साथ आपके लिंक्स थे, जो आपके फ्रेंड्स थे, सोशल सर्कल था, आपके पेरेंट्स थे, यू आर नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट विद देम। So actually this is the darkest, and this is the I must say that this has a very deep and a very strong impact on the psychology of the human being कि आप एक इंसान को एक दूसरे इंसान के साथ इंटरेक्ट करने से मना कर रहे हैं, आप उनको इस हद तक इमोशनली वायलेट कर रहे हैं कि आप उनकी ही आप चाहते हैं कि एक बंदा, आप इतने ओवर पोजीशन शो कर रहे हैं उनके लिए कि वो उस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड जो आपकी बाउंड्रीज हैं उससे बाहर ना जाए। So this is the most brutal form of the emotional violation that most of the time people they do, and most of the time female they are becoming victim of this emotional violence. अब इसके अगर हम मजीद जो कैटेगरीज है उसकी बात करें तो इसमें हमारे पास एक सबसे बड़ी चीज है, दैट इज द सेल्फ एस्टीम। बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो इंटीमेट पार्टनर्स हैं या बाज़-औक़ात इलाज हैं, या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो बहुत कंजर्वेटिव जहाँ सेटअप्स हैं, जहाँ पे इस किस्म के ज़्यादा सख्त रिवायती सेटअप्स में जहाँ ख़वातीन मूव कर रही हैं, वहाँ पे जिस तरह से उनको इमोशनली वायलेट किया जाता है, उसमें तो एक्सट्रीम किस्म के ट्रॉमास ख़वातीन को फेस करने पड़ रहे हैं। दे आर नॉट गिवन द फ्रीडम ऑफ चॉइस, दे आर नॉट गिवन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ये फ्रीडम ऑफ चॉइस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब उनसे छीन लिया जाता है तो एक्चुअली आप उनके अंदर एक ऐसा खौफ और ऐसी एंजाइटी पैदा कर रहे हैं, ऐसी उनके अंदर इतनी इंटेंस एंजाइटी पैदा हो जाती है कि बाज़ औक़ात वो फोबियाज की फॉर्म में चली जाती है। अब जिस तरह से मजीद ये इनसिक्योरिटीज बढ़ती जाती हैं तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसकी मुख्तलिफ फॉर्म में हमारे सामने आते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली जो उनका सर्वे है उसके हिसाब से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होने वाली खवातीन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट वो डिप्रेशन है। उसकी बहुत कॉमन एग्जांपल अभी रिसेंटली हमने देखी है कि कुछ दिन ही पहले ऑलमोस्ट एक 23 साल की बच्ची ने शी कमिटेड सुसाइड इन आवर नेबर कंट्री। And if we search out the history and if we do the analysis of her life history, she was emotionally violated just because of the dowry. And उनको इतना वायलेट किया गया और इतना उनको प्रोवोक किया गया साइकोलॉजिकली, इतना उन पे प्रेशर डाला गया, इतना उनको इनसिक्योर किया गया उस चीज के हवाले से
कि at the end she selected the last option of suicide and then she committed suicide. But before committing the suicide, the message that she gave to the humanity, that was so intense, I must say. So this is the single example. This is the only example of the emotional violation, or this is the only example of the domestic violence against females. We cannot forget so many cases that are being reported in Pakistan. हमारे अपने मुल्क में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं और हमारे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं केसेस जहाँ पे खवातीन को उनको इस हद तक ज़हनी अज़ियत पहुंचाई जाती है, उनको इस हद तक तकलीफ पहुंचाई जाती है, उनको जज्बाती तौर पे इतना कमजोर कर दिया जाता है, इतना आइसोलेट कर दिया जाता है कि उनकी ये आइसोलेशन आहिस्ता आहिस्ता उनकी पर्सनैलिटी को ही डैमेज कर रही है. एंड द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन इट, दे फॉरगेट वन थिंग, कि जो चीज वो अपने खातून के साथ कर रहे हैं, चाहे उनकी बेटी है, बहन है, बीवी है या उनकी बहू है, जिस भी रिश्ते के साथ वो उनके साथ जुड़ी हैं, जो भी वो कर रहे हैं, एटलीस्ट दे हैव टू पे बैक फॉर दिस. और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस स्पेशली जो खवातीन के अगेंस्ट होता है, वी आर गिविंग वी आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू द ब्रूटल वायलेंस अमंग द जनरेशंस. अब अगर एक खातून है, वो एक माँ है, माँ के रोल में है, और उनको आप अजियत दे रहे हैं, आप उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप उनको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप उनको किसी किस्म की जो उनकी लीगल आज़ादी है, जो उनके लीगल राइट्स हैं, आप उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप उनको इस हद तक नफ्सियाती तौर पे कमजोर कर रहे हैं कि वो अपना कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो इतना इनसिक्योर हो गई हैं. तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जनरेशन सिक्योर होगी? The generation will not be secured. So the people who are listening to me right now and the audience who is connected to me, I just want to say a simple thing to them. Where you feel and where the female feel कि हाँ हमारा इमोशनल बैलेंस इस टाइम पे इस लेवल पे आ गया है कि हमारा वो अब डिसबैलेंस हो चुका है, और हमारी जो लाइफ है अब वो इतनी हमारी जो खौफ है या जो हमारी एंजाइटी है, हमारी बेचैनी है, डिप्रेशन है, वो इस हद तक बढ़ चुका है कि अब इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम चीजों के बारे में रिव्यू करें और उनको या तो वाइंड अप किया जाए या उनको किसी नए सिरे से उसको शुरू किया जाए. तो बेहतर ऑप्शन की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि जो जहनी अजियत है या जिस्मानी अजियत है, उसमें तकलीफें जो बाद में आती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं. बहुत कॉमन डिसऑर्डर्स जो हमारे पास आ रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के इशू में, उसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन स्पेशली डिवोर्स के केसेस के बाद जो हमारे पास फीमेल्स आती हैं, और वो एक बहुत लंबा टॉर्चर फेस करके आते हैं. बाज़ लोग फिजिकल टॉर्चर फेस करते हैं, बाज़ लोग मेंटल टॉर्चर से गुजरते हैं जो उनको फेस करना पड़ता है. उनमें बहुत ज्यादा चांसेस देखे गए कि वो पीटीएसडी, दैट इज द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो उनके अंदर पाया जाता है और बहुत एक्सेसिवली पाया गया है. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में उनकी जो उनके साथ जो इंसिडेंट्स होते हैं उसके फ्लैशबैक्स आते हैं उनको, और वो इतनी इंटेंस थॉट्स होती हैं कि वो सो नहीं पाते, उनको इंसोम्निया हो सकता है, उनकी नींद इतनी ज्यादा डिस्टर्ब होती है कि सम टाइम दे नीड अ साइकियाट्रिक हेल्प और दे नीड अ साइकोलॉजिकल हेल्प टू कम आउट ऑफ इट. इसी तरह वो फीमेल जो प्रेगनेंसी में किसी किस्म का डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही हैं इन फॉर्म ऑफ द इमोशनल अब्यूज, इन फॉर्म ऑफ द फिजिकल अब्यूज, उन खवातीन के अंदर पोस्टनेटल डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. इसी तरह से सुसाइड का रेट जो इस टाइम पे इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर जो इंटीमेट पार्टनर का डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्वमेंट है, उसमें खवातीन का सुसाइड रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है और उसमें बहुत बड़ा एक रेशियो उसमें देखा गया है. पाकिस्तान के हवाले से जो फिगर्स हैं उसमें हमारे पास 90% ऑफ द फीमेल्स they are becoming the victim of they had become the victim of domestic violence. 90% खवातीन किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी डोमेस्टिक वायलेंस को फेस कर रही हैं या कर चुकी हैं. तो ये हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं. तो इस चीज के जो नफ्सियाती इम्पैक्ट्स हैं या इसके जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं या जो इमोशनल इम्पैक्ट हैं, वो पर्सनैलिटी में इस हद तक वो आप ऐसे समझ लें कि यूं इतने वो उनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं कि उसको बाहर निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. तो कहने का मतलब मकसद ये है कि इतने बड़े फोरम में जहाँ बैठ के हम बात करते हैं, चाहे वो रेडियो है, टेलीविजन है, या यहाँ पे हम
इंजीनियर्स के साथ बात कर रहे हैं, इतने यूथ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और इसी यूथ ने आगे जाके सब मामला संभालने हैं, तो एक दिन खवातीन का आलमी दिन मना लेने से हमें कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा अनटिल और अनलेस हम उस प्रैक्टिकलिटी को अडॉप्ट ना कर लें जो हमारी खवातीन को उस खौफ की हिसार से, उन एंजाइटी से, डिप्रेशन से, उस बेचैनी से बाहर निकाल सकें जो अजल से उनके साथ चलती आ रही है। और जब तक ये डिबेट जारी रहेगी कि फीमेल में इक्वलिटी है, उनका राइट्स मसावी है, इस डिबेट को अब मेरा ख्याल है कि अब हमें इक्विटी में चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सेप्ट द बैलेंस्ड राइट ऑफ बोथ जेंडर्स। जिन जिन एरियाज के अंदर मेल की डोमिनेंस है वहां पे उनकी डोमिनेंस है और वो डोमिनेंस उनको किसी भी सूरत में कुदरत किसी भी फिजिकल या इमोशनल फॉर्म में इस वे में नहीं देती कि आप खवातीन को मैनिपुलेट करना शुरू कर दें। आप उनको फिजिकली मैनिपुलेट नहीं कर सकते। खुतबा हुज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत क्लियरली ये बात फरमाई है कि औरतों के बारे में डरो, तुमसे औरतों के बारे में सवाल किया जाएगा। इसी तरह से एक और हदीस का मफहूम है कि तुम उनके चेहरे पे इस कोई भी हाथ लगाने से या तमाचा मारने से गुरेज करो। तो जब आपका मजहब इतना क्लियरली आपको चीजें बता रहा है तो फिर इन चीजों को आप हमें देखना होगा। खवातीन उन एरियाज में जहां मेल डोमिनेटिंग एरियाज हैं वहां पे उनकी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करती हैं और वो उनको करना भी चाहिए, लेकिन वहां वो रोल्स जो खवातीन के डोमिनेंट है, जैसे माँ का रोल है, उन जैसे किसी ऐसे रूप में कोई भी औरत है, तो उसकी रिस्पेक्ट, उसकी जो एक जो उसका एक प्रेस्टीज है, उसके जो राइट्स हैं, उनको एक्सेप्ट जरूर करिए। अगर हम नहीं करेंगे एक्सेप्ट तो उसका भुगतान आप सिर्फ अकेले नहीं भुगतेंगे, पूरी जनरेशन उसको सफर करेंगी। हमने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं अपने इतने आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड सिंस 2012 एंड ऑफ एंड ऑन हमारे पास मैरिटल काउंसलिंग के लिए केसेस आ रहे हैं, हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस के साथ खवातीन आ रही हैं, डिप्रेशन के साथ आ रही हैं, पोस्टनेटल डिप्रेशन के साथ खवातीन ऐसे ऐसे केसेस के साथ आई हैं, दे कांट स्पीक, they even can't they are unable to tell us about their intense emotional emotional traumas। वो कितना तकलीफ से गुजरती हैं जब उनको हर वक्त लान तान का या हर वक्त इस चीज का निशाना बनाया जाता है, उनको इंफीरियर दिखाया जाता है, ठीक है, या उनको इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है कि आपके पास कोई आजादी नहीं है, आपको किसी किस्म का कोई फ्रीडम नहीं दिया जाएगा, आपको किसी किस्म का कोई हक नहीं है कि आप प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकें, या उनको फाइनेंशियली उनको इनसिक्योर किया जा रहा है, उनकी जो बेसिक राइट्स हैं जैसे तालीम का हक है, उनका रिहाइश का हक है और बाकी चीजें हैं, वो उसमें से उसको स्नब किया जा रहा है, उसको रोक दिया जा रहा है, उसको नहीं उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी इमोशनल, आप ऐसे समझिए कि वो जो इमोशनल ट्रॉमा से गुजरती हैं और वो जिस टाइम लावा फटता है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत तकलीफ दे होते हैं। वो इमोशनल स्कार्स इतने गहरे होते हैं कि हम कभी कभी उनको ट्रीट करते करते मुझे कभी अक्सर औकात मुझे ऐसा फील होता है कि वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम, वी नीड द स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, कि खवातीन को हम सिर्फ फोरम्स पे प्रेजेंट ना करें, हम सिर्फ फोरम्स पे उनके लिए ना बोलें, जो भी लोग सुनते हैं, जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, जो जिन तक आप कन्वे कर सकते हैं, एक बात ज़हन में रखिए कि आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिल जाएगी। और ये जो इमेजिनरी पावर कंपटीशन में हम पड़े हैं, पावर गेम में हम पड़े हैं कि नहीं हम मर्द हैं, हमारा डोमिनेंस है, हमारा उसकी हर चीज पे राइट है, तो अपने राइट्स को एक दफा अपने मजहब को कंसल्ट करके देखिए, देन यू विल फाइंड आउट द आंसर कि एक्चुअली हम किस तौर तरीके को फॉलो कर रहे हैं और असल में एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। थैंक यू सो वेरी मच, आई एम वेरी मच ऑनर्ड एंड आई एम ब्लेस्ड and I'm here if you have any question in your mind, you can just ask it. Thank you. Thank you so much, ma'am, for being here with us today and giving us information about this sensitive topic. If anybody has any question, you can ask. Welcome, ma'am.
So we at TRAC hope you have enjoyed the webinar and have gained the best out of this opportunity hosted by TRAC in collaboration with Umidasub. If anybody has any question, raise your hands so that you can ask questions. So I would like to thank Ma'am Nashina for referring us to such talented speakers. We are also thankful to Umidasub for collaborating for this webinar. So thank you so much everyone for participating, and I would love to thank speakers who have taken out time for us from their busy schedules. Last but not the least, happy International Women's Day, everyone. Thank you for joining in.